Hello there, everybody. Welcome back to the channel. Today we're going to be watching and reacting to a Nitish Rajput video. A lot of you have recommended and referred me over this way so I can get a better understanding on the whole Balochistan situation that's going on in Pakistan currently. For those that don't know, Balochistan is a province inside of the country of Pakistan. And right now, a good majority of the citizens are revolting against Pakistan to free themselves, free Balochistan from the grips of Pakistan. It's not just Balochistan as well. There's many segments all throughout. There's like the Pakistani armed Taliban segment that's going against Pakistan. There's there's a bit of an uprising in Sindh as well. Pakistan is unfortunately unraveling at the seams, it appears. Unfortunately, or fortunately, whatever way that you look at it. Unfortunate for the higher up governmental officials of Pakistan, I'm sure. Fortunate for the people that want to be freed of Pakistan. But yeah, we're going to go ahead and watch this video. A link to the video will be in the description down below, so make sure to go and check it out. Give it a watch, give it a like, do the whole shebang. And yeah, we are going to learn. I'm going to have to read subtitles on this one. But that's okay, right? Subtitles, I don't mind reading subtitles. No mind it at all. Anyways, without further ado, let's get right into it. कुरान की झूठी कसम खाई और बलोचों को धोखे से नीचे बुला के पकड़ लिया और यहीं पे जिन्ना को कलात का लीगल एडवाइजर बनाना ऐसा भारी पड़ा कि Nitish Rajput has always done some pretty stellar videos. बलूचिस्तान से लेकिन निकाल के कराची, लाहौर और रावलपिंडी भेज दी गई। एक अकेला 80 साल का बलोच नवाब नौरोज खान ने अकेले कैसे पूरे एरिया में तूफान मचा लिया। I do have the video set to 1.25. I think 1.25 might be a little too fast. I normally try to watch it at 1.25, but we might have to watch it at 1. 412 मिलियन टन का जो रिजर्व था वो निकला बलूचिस्तान में, लेकिन उसके प्रॉफिट का 50% चाइना उठा के ले गया और बलोचों के हाथ में उसका सिर्फ 2% प्रॉफिट लगा। Only 2%? That's crazy. पूरी दुनिया के अंदर एक बलोच कौम ही है That's crazy. जिनके लीडर्स अपने बच्चों के साथ आगे आके लड़ते हैं, महंगे होटलों में बैठ के फैसला नहीं लेते। न झुकदा न बिकदा सिर्फ लड़दा, सीपैक नहीं बलोचों दा हक चाहिदा। I mean, if you're pushed up against a wall like this, बलूचिस्तान के लोग अपने राइट्स और आइडेंटिटी के लिए this sort of thing will happen. आवाज है ये ग्लोबल लेवल पर क्लैरिटी और इंपैक्ट के साथ नहीं पहुंचती। कभी पॉलिटिकल नॉइज, कभी मीडिया साइलेंस और कभी फ्रेमिंग की कमी इस इशू को दुनिया if you ask anybody outside of Southeast Asia, right, outside of India, Pakistan, they probably won't even they couldn't tell you what Balochistan was. They probably couldn't tell you what was going on at all. के नैरेटिव में जगह नहीं बनाने देती। और ये सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं, हर उस इंसान की बात है जिसके पास कहने को कुछ इंपॉर्टेंट है पर टूल्स की कमी उसे रोकती है। इसलिए एआई सिर्फ एक टेक रिवॉल्यूशन नहीं है, एक इक्वलाइजर है जो हर इंसान को यह पावर देता है कि वो स्किल्ड बने, अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर दे और उन्हें इंपैक्टफुली दुनिया के सामने रख सके। अगर आप इस वीकेंड 2 दिन देके करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो मैं आउट स्किल का 2 दिन मिस ना करें। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने अपने टाइम पे बड़ी बड़ी क्राइसिस देखी, इकोनॉमी, मिलिट्री रूल, पॉलिटिकल ड्रामा, सब कुछ। लेकिन अभी ये जो टाइम चल रहा है इसमें सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बात अब पाकिस्तान के सर्वाइवल तक पे आ चुकी है। अभी आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, पाकिस्तान के अंदर ये जो बलूचिस्तान वाली प्रॉब्लम है सिर्फ इसके बारे में ही हर तरफ डिस्कशन हो रहा है। और जिस तरह से बलूचिस्तान खुद की आर्मी वगैरह बना रहा है, अभी आने वाले टाइम में Dang, he's really going hardcore into the transitions on this one. Wow. आपको ये नाम और सुनने को मिलेगा। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या दिक्कत आ गई पाकिस्तान के अंदर कि ये जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस है, it takes up quite a bit of Pakistan as well. I didn't realize how big it was. आए दिन ये लोग पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमले कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा कि एक ट्रेन हाईजैक कर ली थी और अपनी जान तक देने को रेडी हो गए हैं कि हम जान दे देंगे, लेकिन अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। हमें जो धोखे से जोड़ा गया, अब हमें वापस अपना अलग देश बलूचिस्तान बनाना है।
अब देखिए बलूचिस्तान ये जो वर्ड है, भले ये न्यूज में अभी ज्यादा आ रहा है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है और पास्ट में कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से दिक्कत So आज was इतनी it a? पुरानी है। I see here then princely state of Khalat, as most of Balochistan was called. Okay, so it was और a पास्ट princely में कई state in ऐसी the चीजें हुई past. हैं जिसकी वजह That से was my दिक्कत question आज there. इतनी बड़ी बन चुकी So है it और was. इस पूरे गेम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये जो पाकिस्तान है ये मेनली 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। ये है खैबर पख्तूनख्वा, इसका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। This is फिर this ये is the पंजाब that's है, the इसका province इंडिया के that साथ has बॉर्डर है। a lot ये of like पाकिस्तान Taliban का मेन insurgents प्रोविंस in है। it, right? जितने भी आर्मी जनरल आप देखोगे सब यहीं से निकलते हैं और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो भी पंजाब प्रोविंस जो है वही एंजॉय करता है। ये इधर ये है सिंध, इसका भी बॉर्डर इंडिया से लगता है। और ये है बलूचिस्तान जिसका बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान से लगता है। Wow. तो देखिए ये जो बलूचिस्तान वाला जो एरिया था 12th सेंचुरी में एज सच कोई बाउंड्री वगैरह नहीं थी इस एरिया की और ना ही इस एरिया का नाम कहीं बलूचिस्तान था। ये जो इस मैप में आप पिंक एरिया देख रहे हो, यहाँ पे अलग अलग एरिया में छोटी छोटी बलूच ट्राइब रहती थी, जैसे मकरान ट्राइब, कच्ची ट्राइब, सिस्तान ट्राइब, टर्बट ट्राइब। यहाँ कोई पॉलिटिकल सिस्टम mean, it नहीं makes था, sense. बस हर This ट्राइब is, का अपना you एक know, how सरदार होता much था of the और world ऐसे was अलग अलग then. ट्राइब्स इस एरिया में रह रही थी। और अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो आज का जो ईरान और अफगानिस्तान है उसका जो बॉर्डर है उसके पास वाले एरिया में भी उस टाइम पे ट्राइब्स थोड़ी थोड़ी जगह इन्होंने ले रखी थी और वहां पे रह So रही थी, क्योंकि are उस the टाइम पे people border like clearly ethnically decide नहीं था। different अब होता as क्या है well? कि जब ये ट्राइब्स इस एरिया में रह रही थी तो इनके बीच में एक मीर जलाल खान नाम का एक आदमी बहुत फेमस था। तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे मीर जलाल ने कहा कि देखिए हम अलग अलग जो रह रहे हैं उससे बेटर है कि हम साथ में मिलकर रहें, जिससे अगर कोई मुसीबत आए तो हम एकजुट होकर रहेंगे और एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो मीर जलाल ने क्या किया, इस एरिया में 44 ट्राइब से जाके बात की और सबको इकट्ठा करके एक अलायंस बनाया। ये पहली बार था जब इस एरिया के अंदर ये ट्राइब्स एकजुट हुई। ये कोई नई कंट्री नहीं बनाई थी इन्होंने, बल्कि एक मॉडल सा बना लिया था जिसमें सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा था। सरदार जैसे पहले अपनी अपनी ट्राइब्स को संभालते थे वैसे ही संभाल रहे थे, बस फर्क इतना था कि 44 ट्राइब्स ने एक अलायंस बनाकर एकजुट होने का डिसीजन कर लिया था, जिसको मीर जलाल जो है वो लीड कर रहे थे। So an alliance of tribes, but not a singular इसी टाइम पे बलूचिस्तान rule. बनाने की जो नींव थी इसी टाइम पे रख दी गई थी। So इसलिए आप no देखोगे आज separate की डेट में country भी at the लोग time. मीर जलाल खान को फाउंडिंग फादर मानते हैं बलूच कम्युनिटी का। इनकी इंपॉर्टेंस आप इससे समझ सकते हो कि मीर जलाल खान के जो बच्चे थे जैसे रिंड, लशारी, कोराय, बीबी जाटो, आज की डेट में बलूचिस्तान में कई ऐसे एरिया हैं इनके बच्चों के नाम से पड़े हैं, जैसे रिंदाबाद विलेज, कोराई विलेज, जटोई सिटी, ये सब इनके बच्चों के नाम से डिराइव हुए हैं। अब देखिए काफी टाइम तक ये जो मॉडल बनाया गया था ये चलता है। इसके बाद 15th सेंचुरी आते आते मीर जलाल के बाद मीर चकर रिंद जो थे ये भी आए। इन्होंने भी सेम चीज की, इसको और ऑर्गेनाइज किया और सारी ट्राइब्स को एकजुट रखा। और उस टाइम पे ये जो एरिया था, ये जो सेमी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में रह रहे थे, उस टाइम पे बलूचिस्तान नहीं बल्कि रिंद लशारी यूनियन नाम से लोग जानते थे इस एरिया को। Rind अब Lashari होता क्या है कि Union. ये ट्राइब मिलजुल के तो रह रही थी, लेकिन ईयर 1666 जब आया तो इधर ईरान में सफाविद अंपायर बहुत बड़ा बनता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ देखोगे तो आप मुगल अंपायर था। तो क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े अंपायर जो थे वो अगल बगल ही थे, तो इससे जो बलूच ट्राइब्स थी जो बीच में यहाँ रह रही थी उनके ऊपर टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर रहता था। तो ये सारा जो प्रेशर इन पे डेवलप हो रहा था, इसको लेके इनको लगा कि इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। इन्होंने So अपने because of आसपास the के empires को Mughals, देखा they कि had to कैसे काम build कर their रहे own हैं। nation at उन्हीं से that point inspire then. होके खुद भी एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाना स्टार्ट किया। जैसे बाकी एम्पायर्स काम कर रहे थे कुछ उसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर बनाने का स्टार्ट किया। तो ये जो सारी ट्राइब्स इस एरिया में रह रही थी, इन्हीं सारी ट्राइब्स के बीच में एक और ट्राइब थी जिसका नाम था अहमद जाई ब्राहुआ ट्राइब। ये मैप में ये जो आप कलात नाम से जो एरिया देख रहे हो, इसी एरिया में ट्राइब थी और इस ट्राइब के अंदर एक आदमी था मीर अहमद खान। तो जब सेंट्रल अथॉरिटी बनाने की बात चल रही थी तो सारी ट्राइब्स ने मिलके मीर अहमद खान को खान ऑफ कलात बना दिया। अब ये खान ऑफ कलात क्या है? जैसे बादशाह हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक उसी तरीके से इन्होंने I mean, we still got to give them credit. They were able to keep this union going for 400 years. That's a significant time. That's a really long time. उसको नाम दिया खान ऑफ कलात, कि मतलब यही लीड करेंगे। And then it was यहाँ पे because of एक the चीज ये Mughals, ध्यान they were रखने वाली है forced कि ये जो to सारी form their own tribes nation. थी, इन्होंने खान ऑफ कलात तो बना दिया था मीर अहमद खान को, लेकिन कुछ ट्राइब्स जो थी उनके जो सरदार थे उन्होंने कहा कि हम खान ऑफ कलात मान तो रहे हैं आपको, लेकिन हमारी जो ट्राइब है, हमारा जो एरिया है वहां उसको हम खुद मैनेज करेंगे। तो इस वजह से ये जो मैप में आप ये डार्क ग्रीन एरिया देख रहे हो, इसको खान ऑफ कलात यानी कि मीर अहमद ये डायरेक्टली रूल कर रहे थे, और जो लाइट ग्रीन एरिया है इसको खान ऑफ कलात ने इनडायरेक्टली रूल किया। और ये जो पूरा ग्रीन एरिया, चाहे वो लाइट ग्रीन है या फिर डार्क ग्रीन है,
इस पूरे एरिया को कहा गया खानेत ऑफ कलात। आगे चल के यही खानेत ऑफ कलात बलूचिस्तान बनेगा। तो जब भी कलात स्टेट या खानेत ऑफ कलात की बात हो तो आप समझ जाना कि इस पूरे जो लाइट और डार्क ग्रीन ये जो एरिया है पूरा, इसकी बात हो रही है। तो जब ये खानेत ऑफ कलात एक प्रॉपर सिस्टम बना तो लॉ, ट्रेड, मिलिट्री सारा सेटअप बनाया गया और फिर काफी टाइम तक ये सिस्टम चला। और फिर धीरे धीरे करके जब ईयर 1749 आया और मीर अहमद खान के बाद इनके पोते मीर नासिर खान ये बनते हैं खान ऑफ कलात। बलोच जो हैं वो इस टाइम को गोल्डन पीरियड मानते हैं। नासिर खान ने आते ही इस पूरे खानेत ऑफ कलात में एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम बनाया। इन्होंने बलोच आर्मी सेटअप की जिसमें 25,000 सोल्जर्स बनाए, 1,000 कैमल रखे उसमें। देखिए इसमें ये चीज याद रखिएगा, मैं रिपीट भी कर देता हूं। That's not insignificant. That's pretty large for the time period. खुद के अलग सिस्टम थे, उनके जो सरदार थे वो उनको चलाते थे, लेकिन ये सब चलते थे खान ऑफ कलात के अंडर। तो इसीलिए खान ऑफ कलात ने क्या किया था, इस एरिया की जितनी भी बलूच ट्राइब थी सबके जो सरदार थे इनको बुला के काउंसिल सिस्टम बनाया था ताकि कोई फैसला हो तो सबकी सहमति हो सके। सब कुछ यही काउंसिल डिसाइड करती थी, जैसे पार्लियामेंट काम करती है ठीक उसी तरीके से काउंसिल काम करती थी। अब इसके बाद ईयर आता है 1830 और ये ईयर आते आते असली दिक्कतें स्टार्ट होना शुरू होती हैं। Is this where the like a collapse comes? Yeah, the British, अपना of course. अनडिवाइडेड इंडिया पे रूल कर रहे थे। लेकिन सेम टाइम पे क्या था कि ब्रिटिशर्स और रशिया जो थे इनके बीच में एक जियोपॉलिटिकल लड़ाई चल रही थी जिसे द ग्रेट गेम भी बोला जाता है। तो ये जो सेंट्रल एशिया का एरिया आप देख रहे हो जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये पूरा सेंट्रल एशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता था। सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, सिल्क रूट, इकोनॉमिक एक्टिविटी सब कुछ यहीं से होती थी। और इस सेंट्रल एशिया के अंदर किसी भी एम्पायर और मिलिट्री की प्रेजेंस अगर हो जाए तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता था इससे। तो रशिया ने क्या किया कि धीरे धीरे करके सेंट्रल एशिया के कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इन पे कब्जा करके अपना जो एम्पायर था उसको एक्सपेंड कर लिया था। और इसके साथ साथ वो अफगानिस्तान की तरफ भी बढ़ रहे थे। Wait, इसके when लिए did इन्होंने when did year when did 18 when did this when did the Soviet Union first form? The Soviet Union did not form back in the 1800s, did it? Soviet Union start. Yeah, officially Union of Soviet Socialist Republic USSR was December 1922. It emerged from the ashes of the Russian Revolution in 1917. 1937 में अफगानिस्तान के अंदर अपने डिप्लोमेट Okay. So here it's just So here it's just labeled the Russian Empire. All right, I just got confused there for a second. भेजा था। अफगानिस्तान के जो रूलर थे उस टाइम के दोस्त मोहम्मद खान, इनसे बात स्टार्ट कर दी थी। अब जब रशिया या अफगानिस्तान में घुस रहा था तो यहाँ से ब्रिटिशर्स जो थे, जो इंडिया के ऊपर बैठे हुए थे, वो परेशान हो गए। ब्रिटिशर्स जो इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे, इंडिया को वो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मानते थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा Can we just like give a little appreciation on I love this. This feels like the 3D modeling that he's working with feels so quaint. Like it almost kind of reminds me of like of my childhood back when like video games kind of, you know, weren't the highest fidelity almost, and you know everything kind of had that like plastic toy feel and look to it. This is kind of what this reminds me of, all the 3D renderings that he's doing in the video. रिसोर्सेज थी और रशिया जिस तरीके से बढ़ रहा था और फिर धीरे धीरे अफगानिस्तान में भी घुस रहा था, बहुत पॉसिबिलिटी थी कि वो इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच जाता और ब्रिटिशर्स और रशिया आपस में लड़ना नहीं चाहते थे। तो अब यहां से ब्रिटिशर्स ने अपना दिमाग लगाना चालू किया। उन्होंने ये सोचा कि अगर इंडिया और रशिया के बीच में एक बफर जोन होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी और जो भी कंट्री इस बफर जोन में हो वो हमारे हिसाब से चले। और अगर ये चीज कर ली तो रशिया इंडिया तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने प्लान ये बनाया था कि अफगानिस्तान पे रशिया से पहले पहुंच के हम लोग हमला कर देंगे और अफगानिस्तान का जो रूलर है दोस्त मोहम्मद खान, इसको हटा के और अपना जो पपेट रूलर है Put a puppet ruler and allow that to be the buffer zone. रूलर बना देंगे, जिससे होगा ये कि अफगानिस्तान के ऊपर रशिया से ज्यादा ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहे, उनका इन्फ्लुएंस रहे। अब अफगानिस्तान पे अगर हमला करना है और अपना रूलर बैठाना है तो इंडिया से ब्रिटिशर्स को अपनी आर्मी अफगानिस्तान में पहुंचानी पड़ेगी और उसके लिए एक रूट चाहिए होगा। तो एक रूट तो ये इधर से नॉर्दर्न रूट पेशावर और खैबर के पास के थ्रू जाता था, लेकिन सिख अंपायर था उस टाइम। तो जब ब्रिटिशर्स इस एरिया से अपनी आर्मी ले जाने को कह रहे थे तो सिख अंपायर के जो राजा रंजीत सिंह जी थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो ब्रिटिश आर्मी है वो हमारी धरती से ऐसे रास्ता बना के नहीं जाएगी। तो जब सिख अंपायर वाला ऑप्शन सही नहीं पड़ा ब्रिटिशर्स के लिए तो यहां से इनकी नजर पड़ती है खानेत ऑफ कलात, जिसको कलात स्टेट भी बोलते थे उस टाइम पे कुछ लोग। तो ब्रिटिशर्स ने प्लान बनाया कि वो इंडिया से बोलन पास, क्वेटा, चमन ऐसे करके अफगानिस्तान पहुंचेंगे। और
बीच में ये जो बोलन पास, क्वेटा, चमन वाला जो बलूचिस्तान का जो एरिया है, बलूचिस्तान अभी बोल रहा हूँ, उस समय बलूचिस्तान एरिया नहीं पड़ा था। ये जो एरिया था, इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, अपने डिप्लोमेट अलेक्जेंडर बर्नीज को उस टाइम के खान ऑफ कलात मेहराब खान के पास भेजा, ताकि ये परमिशन वगैरह लेके, एग्रीमेंट वगैरह लेके negotiate these terms. A precondition of the invasion of Afghanistan was the safe passage of British troops in the lands of Balachis. Agreed to the principle, but as long as the British agreed to leave the Khanate after the Afghanistan expedition had been completed, and also if British helped restore Balach control over Karachi. Okay. यहाँ से निकलने का अरेंजमेंट करें। बेसिकली ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत पावरफुल थे, उनको इस एरिया से जाना था, तो इस एरिया पे वो प्रॉपर कंट्रोल चाहते थे। तो इसके लिए इन्होंने पहले खान ऑफ कलात से एक डील करी, उनसे कहा कि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे और आप हमें इस एरिया को यूज करने दो। अब खान ऑफ कलात की भी मजबूरी थी, उन्होंने ये डील मान ली। अब इसके बाद ईयर 1839, ये वो टाइम आया जब ब्रिटिशर्स को कलात स्टेट इस एरिया को यूज करके अपनी आर्मी one thing about all this, I don't know any of this. This is all new to me. I'm just like so engrossed in it right now. कि वो इस एरिया से जाएंगे, लेकिन लोकल लोग जो थे इस एरिया के, वो भले ही साइन हो गया हो खान ऑफ कलात से, वो इस चीज से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम In contrary, British army faced much resistance and trouble while advancing towards Afghanistan, created anger among the British policy makers. Resultantly, Kalat was assaulted. Throughout Balochistan, occupation of Kalat created civil resistance on an unprecedented and unprecedented scale. They revolted against the British interference and fought against them, which resulted in their submission to the rule of Nasir Khan. वो भले ही साइन हो गया हो खान ऑफ कलात से, वो इस चीज से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन है तो हम ऐसे नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने खान ऑफ कलात ने जो एग्रीमेंट किया था उसके अगेंस्ट जाके ब्रिटिश आर्मी पे छोटे छोटे अटैक कर दिए। अब जब ये अटैक हुए तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये जो मेहराब खान है, ये तो अपने लोगों को अटैक करने से रोक ही नहीं पा रहा है, और साथ में इनको ये भी डाउट हुआ कि क्या पता मेहराब खान जानबूझ के ना रोक रहा हो, वो चाह रहा हो कि ऐसे अटैक होते रहें। इसके साथ साथ एक डाउट ये भी था मेहराब खान के ऊपर कि शायद ये अफगानिस्तान से भी इसके कुछ लिंक हैं। तो कुल मिला के ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि भले ही मेहराब खान ने एग्रीमेंट साइन कर दिया हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि पीछे से खुद ही अटैक करवा रहा हो। तो ब्रिटिशर्स ने गुस्से में नवंबर 1839 में कलात स्टेट इस पे अटैक करके मेहराब खान को मार दिया। और जो मेहराब खान That's not how bullets work. में कलात स्टेट इस पे अटैक करके I have to point this out because I pointed out in every single form of media that I see that does this. This is not how a bullet would work. It would just be the tip. It would just be the tip shooting out of the gun. The rest would be discharged to the side. This is this is like all like unprimed, all the gunpowder still in there. All right. Anyways. मेहराब खान को मार दिया, और जो मेहराब खान का एंटी था शाह नवाज खान, उसको खान ऑफ कलात बना दिया, जो ब्रिटिशर्स के हिसाब से चलता था। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स को यह समझ में आ गया था कि अगर इस पूरे एरिया को रशिया से बचा के बफर जोन बनाना है तो कलात स्टेट के इस रीजन को अपने कंट्रोल में रखना होगा। ब्रिटिशर जो थे पूरे कलात स्टेट को अपने अंडर में लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे दूर दूर तक खाली लैंड थे, रिसोर्सेज इतने थे नहीं, और किसी भी लैंड को अपने अंडर में लेने में बहुत सारी आर्मी वगैरह लगानी पड़ती है, तो वो इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, कलात स्टेट जो था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये रीजन था पिंक वाला, क्वेटा, बोलन पास, चमन, चगई। It just leave it to the British to just like, oh yeah, we're just going to forego, the entire history of the area. We're going to forego the entire history of the area, and we're going to establish our own borders for you. Okay, we're you know what? Forget everything. Forget the last 600 years. This is the new border now. किया अपनी मिलिट्री के दम पे, और बाकी जो एरिया था ये इनडायरेक्टली कंट्रोल किया, अपने हिसाब से चलाने वाले रूलर को वहां पे बैठा दिया, और टाइम टू टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, ताकि अंदर का जो एरिया है वो भी कंट्रोल में रहे। लेकिन जिस तरीके से इंडिया को अपने अंडर कोलोनाइज किया था, वैसे कलात स्टेट को ब्रिटिशर्स ने कभी भी नहीं किया। तो ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान पे भी हमले करके, बातचीत करके Wait. कभी भी नहीं। But the way they colonized India under them, the British never did the same with. Okay. तो ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान So they पे just भी kind of हमले let करके, them be? बातचीत करके
अलग अलग टैक्टिक्स यूज करके वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बनाया और ईरान में भी ऐसे ही अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। अंग्रेज जो रशिया और इंडिया के बीच में एक बफर जोन बनाना चाह रहे थे वो बहुत ही आसानी से इन्होंने बना लिया। और ये जो बफर जोन ये लोग बना रहे थे इसके चक्कर में कलात स्टेट के बॉर्डर की भी मार्किंग स्टार्ट कर दी थी, मतलब ऑफिशियली बॉर्डर बना के रजिस्टर करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि पहले एज सच कोई बॉर्डर नहीं होते थे, फ्रंटियर्स होते थे, दूर दूर तक ऐसी खाली एरिया पड़ा रहता था। तो जब ब्रिटिशर्स ने कलात स्टेट के बॉर्डर बनाना चालू किए तो कलात स्टेट के बॉर्डर के पास का काफी एरिया जो ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगता था उसको कभी गोल्ड माइन लाइन एग्रीमेंट के थ्रू और कभी ट्रीटी ऑफ गंडामार्क करके ईरान और अफगानिस्तान को दे दिया, ताकि ईरान और अफगानिस्तान खुश रहें और रशिया के इन्फ्लुएंस से दूर रहें। और ये सारी चीजें करने के थोड़े ही दिन बाद 8 दिसंबर 1876 में कलात स्टेट के साथ एक ऑफिशियल ट्रीटी भी कर ली कि हर चीज ऑन पेपर भी रहे, जिसको ट्रीटी ऑफ कलात कहते हैं। Now, if Balochistan would be free today, would they go back to the Kalat name? Or would they keep Balochistan? इसके बाद कलात स्टेट की फॉरेन पॉलिसी वगैरह ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले ली थी और जो डेली बेसिस के इंटरनल मैटर थे वो खान ऑफ कलात को दे दिए थे कि इंटरनल मैटर तुम खुद संभालो। और फॉरेन पॉलिसी लेने के बाद रशिया का इस एरिया से पूरा कंट्रोल चला गया और इसके बदले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कलात स्टेट को शुरू में 50,000 रुपए दिए साल के और फिर इसको बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिए थे। अब देखिए यहाँ से एक बार फिर से मैप देख लीजिए, पिंक एरिया ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री के दम पे अपने पास रखा था, ये ग्रीन एरिया में खान ऑफ कलात को इनडायरेक्टली रूल करने को दिया था। और फिर इसके बाद ईयर 1887 में ये जो पिंक एरिया था जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था इसको भी ऑन पेपर अपने अंडर इनडायरेक्टली ले लिया और लीज के थ्रू जब ऑन पेपर कराया गया तो इसका नाम रखा गया ब्रिटिश बलूचिस्तान। British Balochistan. और इस तरीके से ऑफिशियली पहली बार बलूचिस्तान का नाम यूज हुआ। बाकी बचा हुआ जो ग्रीन एरिया था वो अभी भी उसको कलात स्टेट ही बोलते थे, खानेत ऑफ कलात। अब देखिए इसके अगले 50-60 साल तक एज सच कोई बड़ा इवेंट नहीं होता है और फिर ब्रिटिशर्स के जाने का टाइम पास आ जाता है। जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसका बंटवारा होना था, पाकिस्तान बनना था। तो सेम टाइम पे जो खान ऑफ कलात the Kalat had nothing to do with the rest, had nothing to do with the rest of the Indian subcontinent, right? Nothing at all. And yet they're like, the British are like, oh yeah, we're just going to wrap this into Pakistan. Okay. थे मीर अहमद यार खान। इन्होंने ये सोचा था कि अब जब अंग्रेज जा रहे हैं तो हमें ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज तो किया नहीं था, तो हम तो अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएंगे। इस चीज को लेके खान ऑफ कलात जो थे वो इसलिए भी कॉन्फिडेंट थे क्योंकि लीगली भी ये चीज वैलिड थी। सबसे पहली चीज ईयर 1876 में जो ब्रिटिशर्स और कलात स्टेट के बीच में जो ऑफिशियल ट्रीटी हुई थी उसके आर्टिकल 3 के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने ऑन पेपर ये चीज ऑफिशियली एक्सेप्ट की थी कि कलात स्टेट ब्रिटिशर्स का एरिया नहीं है बल्कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। और जो एरिया ब्रिटिशर्स ने लिया है जिसे ये ब्रिटिश बलूचिस्तान बोलते हैं वो भी एक एग्रीमेंट और लीज के तहत लिया था, यानी कि जैसे कोई किराए पर रहता है। इसके साथ साथ ईयर 1886 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में ऑफिशियली ये चीज मेंशन की थी खान ऑफ कलात को एक इंडिपेंडेंट रूलर जो कि एक ट्रीटी के थ्रू ब्रिटिशर्स के साथ कनेक्टेड है ये चीज मेंशन की थी। और ईयर 1877 में दिल्ली इंपीरियल असेंबली में खान ऑफ कलात खुदादाद खान को एक इंडिपेंडेंट राजा की तरह बुलाया था, मतलब कि ब्रिटिशर्स खुद मानते थे कि कलात स्टेट एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो लीगली ब्रिटिशर्स किसी भी स्टेट को ये नहीं कह सकते थे कि कलात स्टेट जो है वो ब्रिटिशर्स के एम्पायर का पार्ट है। और अगर ऐसा कहते ब्रिटिशर्स तो इंटरनेशनली भी बहुत दिक्कतें होती हैं उनको। लेकिन अगर दूसरी तरफ कलात स्टेट अगर एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह हो जाता तो ब्रिटिशर्स के साथ साथ यूएस को भी डर था कि कलात स्टेट काफी वीक है, कहीं ये ना हो जाए कि रशिया का इन्फ्लुएंस फिर से बढ़ जाए इस एरिया में। और जो एरिया था स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और अगर यही कलात स्टेट पाकिस्तान के साथ मिल जाता है तो पूरा एरिया स्ट्रांग होता है और रशिया का इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ पाता क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ब्रिटिशर्स का काफी अच्छा इन्फ्लुएंस था। तो ब्रिटिशर्स के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जो कलात स्टेट है वो इंडिपेंडेंट होने की बजाय पाकिस्तान के साथ मिले तो वो चीज ज्यादा फेवर करेगी। तो अब यहां से इस एक of course it's the same old game with the British। खान ऑफ कलात जो है वो फंस जाते हैं। होता क्या है कि अनडिवाइडेड इंडिया से जब ब्रिटिशर जा रहे थे तो इस अनडिवाइडेड इंडिया के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान यानी कि जिन्ना की मुस्लिम लीग और नेहरू जी की कांग्रेस
दो कंसर्न पार्टी थी क्लेम करने के लिए। इन दोनों पार्टियों को आपस में बात करके फैसला लेना था कि किसके पास कितना पार्ट जाएगा इस अनडिवाइडेड इंडिया का। लेकिन अगर लीगली ये प्रूव हो जाता है कि जो ये कलात स्टेट है ये ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं है, ये तो सिर्फ एक लीज के थ्रू कुछ टाइम के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने लिया था, जिसके लिए अंग्रेज जो थे वो एनुअली पैसा भी देते थे। तो अंग्रेजों के जाने के बाद ये जो कलात स्टेट था इसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान का क्लेम खत्म हो जाता। और पाकिस्तान ने यही डिसाइड किया था कि कैसे भी अंग्रेजों के जाने से पहले ये जो कलात स्टेट है ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट साबित हो जाए, क्योंकि जैसे ही कलात स्टेट जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट साबित होगा तो जो इंडिया का क्लेम है वो खत्म हो जाएगा कलात स्टेट के ऊपर से, और बाद में पाकिस्तान जब चाहेगा वो कलात स्टेट को अपने अंडर में ले लेगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि पाकिस्तान इतना ज्यादा श्योर कैसे था कि अंग्रेजों के जाने के बाद कलात स्टेट उसको वो अपने साथ जोड़ लेगा। तो देखिए what happened? What happened? Tell me. वाला एरिया था जो अंग्रेजों I ने need to लीज know. पे लिया था, ये अंग्रेजों के जाने के बाद एज इट इज लीज जो थी वो पाकिस्तान के साथ चली जाती। ये ब्रिटिशर्स ने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि एक तो मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी यहाँ पे, दूसरा इंडिया से इसका बॉर्डर नहीं लगता था। तो ये पिंक वाला जो ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला एरिया था ये अंग्रेजों के जाने के बाद जो लीज चल रही थी उस लीज को एज इट इज पाकिस्तान कंटिन्यू करता। जो आप लाइट ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं जिसके सरदार कलात स्टेट से जुड़े थे लेकिन अलग अलग अपने अपने रीजन खुद चलाते थे, और ये जो सरदार थे इनसे जिन्ना ने अच्छी बॉन्डिंग कर ली थी। जिन्ना ने कहीं ना कहीं ये जो सरदार थे इनको कन्विंस कर लिया था कि अंग्रेजों के जाने के बाद पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बनेगा, और अगर आप पाकिस्तान के साथ जुड़ोगे तो पहली चीज तो आपको अपनी ऑटोनॉमी मिलेगी, बाकी आपकी आइडेंटिटी और कल्चर जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ के ज्यादा सही से चलेगी। और सरदार जो थे वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे थे जिन्ना की इस बात से, क्योंकि कलात स्टेट जो है ये जो डार्क ग्रीन वाला जो एरिया है इनके जो लीडर थे वो आजादी के बाद कलात स्टेट को एक सेकुलर देश बनाने की बातें कर रहे थे। तो इन सब चीजों से जिन्ना को यकीन था कि एक बार इसको इंडिया के इन्फ्लुएंस से लीगली दूर कर दो, उसके बाद जो कलात स्टेट होगा उसको अपने अंडर बड़े आराम से ले लिया जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान की ये चीज ब्रिटिशर्स को भी सूट कर रही थी तो ब्रिटिशर्स भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इसके फेवर में थे। तो इसके बाद जिन्ना ने क्या किया, खान ऑफ कलात की जो बात थी कि एक इंडिपेंडेंट देश की तरह इसको होना चाहिए जब अंग्रेज चले जाए, इसको सपोर्ट किया। जिन्ना ने कहा कि कलात स्टेट जो है उसका ब्रिटिशर्स से कोई लिंक नहीं है, उन्होंने बस एक लीज और ट्रीटी कर रखी है, इसलिए कलात स्टेट को एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए। अब जिन्ना की इस चीज को सुन के खान ऑफ कलात जो थे वो बहुत खुश होते हैं कि ये अकेला आदमी है जो मेरे को सपोर्ट कर रहा है। अब जिन्ना जो थे वो लॉयर भी थे, तो खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने ईयर 1946 में जिन्ना को पूरे कलात स्टेट का एक लीगल एडवाइजर बना दिया। What? खान ऑफ कलात ने जिन्ना को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि कलात स्टेट को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, इस केस को अंग्रेजों के सामने आप रिप्रेजेंट करोगे। और जैसे ही जिन्ना को लीगल एडवाइजर बनाया गया तो जिन्ना ने मार्च 1946 को एक मेमोरेंडम बनाया जिसमें सारी चीजें मेंशन करी उन्होंने कि कलात स्टेट ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी और लीज एग्रीमेंट के साथ जुड़ा है, और रेफरेंस भी ऐड किए पूरी ट्रीटी के। और इस मेमोरेंडम में डिमांड करी गई कि ब्रिटिशर्स जब जाए तो कलात स्टेट जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए। और ये सारा कुछ बना के ब्रिटिशर्स के जो कैबिनेट मिशन था उसको ये सबमिट कर दिया गया। और जब ये मेमोरेंडम सबमिट हुआ तो ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि ये जो कलात स्टेट है ये ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इंडिपेंडेंट रहेगा। और फिर इसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो सोचा था कि ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला जो एरिया है जो लीज पे ले रखा था खान ऑफ कलात से, उसको जाते टाइम पाकिस्तान को देंगे, तो उसके लिए भी ब्रिटिशर्स ने काम स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 29 ऑफ जून 1947 को इस एरिया की सासी जिरगा ट्राइब थी, जो कि ये कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको अपॉइंट कर रखा था अलग अलग काम के लिए। तो कहीं ना कहीं ये लोग ब्रिटिशर्स के लॉयल थे, इनके हिसाब से चलते थे। इनको बुलाया और इस एरिया के जो ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला एरिया था यानी कि क्वेटा वाला जो एरिया था, इसके म्युनिसिपैलिटी के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी बुलाए और एक वोटिंग करा दी कि ब्रिटिश बलूचिस्तान को कहां पे जोड़ना चाहिए। अब इस वोटिंग को लेके कलात स्टेट की जो लीडरशिप थी ये बहुत ज्यादा गुस्से में हुई कि आपने किसी भी कलात की Of course they didn't. Of course they would exclude Kalat. Well, of course. Of course. लीडरशिप को Of course. कोई रेफरेंडम नहीं कराया और पूरे स्टेट में बिना पूछे वोटिंग कराई। और इस वोटिंग का जब रिजल्ट आया तो ये डिसाइड हुआ कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद ये जो एरिया है जो ब्रिटिशर्स ने लीज पे लिया है ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला, ये एज इट इज पाकिस्तान को चला जाएगा। अब इस चीज को लेके जो बलोच ट्राइब So that's the story, huh?
Wow. They cheated the system. They cheated the system. लीडरशिप थी। ये Wow. बहुत ज्यादा गुस्से में हुई कि आपने किसी Wow. है जो Wow. ब्रिटिशर्स ने लीज पे लिया है, ब्रिटिश बलूचिस्तान वाला, ये एज इट इज पाकिस्तान को चला जाएगा। अब इस चीज को लेके जो बलोच ट्राइब थी, जो कलात रीजन वाला जो एरिया था, इसको बहुत अपोज किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने तो लीज कर रखी थी, वो इस एरिया के कोई ओनर तो थे नहीं, तो उनका क्या हक बनता है कि वो इस एरिया को पाकिस्तान के साथ भी लीज पे दे दे। तो जब ये सारी बातें चल रही थी, तो इसके बाद फिर डेट आती है 4 अगस्त 1947। इस दिन कलात स्टेट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसको लेके हर तरफ बात तो हो ही रही थी। और इसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्ना और खान ऑफ कलात एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं और यहां से ये डिसाइड होता है कि कलात स्टेट जो है, जो ईयर 1838 का स्टेटस था, वही स्टेटस रहेगा कलात स्टेट का, यानी कि कलात स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। अब ये जो सबने मिलकर डिसीजन बनाया, इसको लेके खान ऑफ कलात तो बहुत ज्यादा खुश हुए। इन्होंने कहा कि एक काम और कर दीजिए, एक रिटर्न एग्रीमेंट भी कर लेना चाहिए कि कलात स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। अब इस रिटर्न एग्रीमेंट को लेकर तो पाकिस्तान के लिए दिक्कत हो जाती, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंट कलात स्टेट के लिए डिक्लेरेशन तो दे दिया, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। What do you mean it doesn't hold any meaning? If it's written, it's proof. If it's not written, it can be challenged. Oh my God. इसके बाद खान ऑफ कलात ने ये कहा कि आप एटलीस्ट पब्लिक अनाउंसमेंट कर दीजिए। The British denied announcing even like. लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसके लिए भी मना कर दिया। और फिर खान ऑफ कलात ने इसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया कि हमारा जो एरिया है, हमारा जो कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, अब वो एक इंडिपेंडेंट देश में रहेगी। और सेम डे यानी कि 4 अगस्त 1947 को कलात स्टेट और पाकिस्तान के जिन्ना ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने ऑफिशियली कलात स्टेट को एक इंडिपेंडेंट स्टेट माना। और जैसे ये हुआ, अब यहां से इंडिया का रोल खत्म हो जाता है। और ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की जो डेट है, ये आप अगर इंटरनेट पे देखोगे तो कहीं पे 11 अगस्त भी लिखा होगा, लेकिन 11 अगस्त को अनाउंसमेंट हुई थी, एक्चुअल में 4 अगस्त को ही ये साइन हुआ था। तो पाकिस्तान इस चीज को लेकर बहुत खुश था, क्योंकि उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया था। और इसकी वजह से इंडिया जो है इस पूरे गेम से बाहर हो गया था। वरना अगर ये एग्रीमेंट साइन नहीं होता तो वही कश्मीर वाली जैसी सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फिर से बन सकती थी। अब इसके बाद अंग्रेजों के जाने के बाद, जैसे 15 अगस्त 1947 इंडिया को आजादी मिली, पाकिस्तान अलग स्टेट बना, सेम डे खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने भी अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी। Let me read that again. मीर अहमद यार खान ने भी अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी। Okay. और फिर इस अनाउंसमेंट के करीब एक महीने बाद, यानी कि 12 सितंबर 1947 को ब्रिटिशर्स ने एक छोटा सा ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने ये जो कलात स्टेट की इंडिपेंडेंस अनाउंस की है, ये कर तो दी है इन्होंने, लेकिन कलात स्टेट जो है ये इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की सिचुएशन में नहीं है। अभी जो स्टेटमेंट है ये सुनने में तो बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसके बहुत मायने हैं। ये पूरा स्टेटमेंट पाकिस्तान के सपोर्ट में गया और इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान ने प्रेशर बनाना चालू किया। खान They were planning this from the beginning. They were planning this from the beginning. They were planning on backstabbing them. That's why they didn't have them sign an agreement. That's why they didn't publicly state it. कलात पे कि पाकिस्तान से जुड़ जाओ। पाकिस्तान ने Oh दो my चीजें God. की। एक तो कलात स्टेट पे हमला करने के लिए तैयारी शुरू कर दी और धीरे धीरे करके आर्मी डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। और साथ में जो पहले मैंने बताया था कि कलात स्टेट के साथ जो मकरान, लसबेला और खरान वाला जो एरिया है, जिनके सरदार कलात स्टेट के साथ जुड़ गए थे, इनके लीडरों से जिन्ना ने बात करना स्टार्ट कर दिया था कि पाकिस्तान से जुड़ जाओ। अब ये सारी चीजें देख के जो खान ऑफ कलात थे, उन्होंने दिसंबर 1947 में ये तुरंत ब्रिटिशर्स के पास गए कि ये जो पाकिस्तान है ये हमारे साथ जुड़ने के लिए बोल रहा है, हम पे हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, तो हमें भी मिलिट्री सपोर्ट चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने साफ मना कर दिया। इसके बाद खान ऑफ कलात जो थे वो अफगानिस्तान के पास गए, यहां तक कि इंडिया के पास भी गए, लेकिन अफगानिस्तान और इंडिया ने भी सपोर्ट करने से मना कर दिया। और फिर जनवरी 1948 के स्टार्टिंग में पाकिस्तान ने मकरान, लसबेला और खरान के जो लीडर थे इनसे बात करी, एक डील करी, जिसमें ये हुआ कि पाकिस्तान जो है इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, इनके जो सरदार हैं उनको स्टेट हेड बनाएगा पाकिस्तान का, इनके कल्चर और आइडेंटिटी को कभी भी नहीं छेड़ेगा। ये सारी चीज़ें बोलने के बाद
17 मार्च 1948 में पाकिस्तान ने इनको जोड़ लिया। जैसे ये सारे सरदार They were पाकिस्तान से tricked, मिले, man. जो कलात स्टेट वाला जो एरिया था, वो Oh, चारों तरफ से brother. फंस गया। आप अगर इसको Brother, मैप में brother, देखोगे तो एक brother. लैंडलॉक एरिया की तरह बन गया। पॉलिटिकली पूरी तरीके से आइसोलेट हो गया। ब्रिटिश बलूचिस्तान जो था वो पहले से ही पाकिस्तान के पास था। ये मिलने के बाद पूरा का पूरा एरिया पाकिस्तान के पास आ गया और फिर इसके ठीक 10 दिन बाद पाकिस्तान के मेजर जनरल मोहम्मद अकबर खान ने पाकिस्तान की आर्मी के साथ कलात में घुसना स्टार्ट किया और पाकिस्तान की नेवी के डिस्ट्रॉयर्स जो थे, वॉरशिप थी, उनको पसनी और जिवानी के जो पोर्ट्स थे वहां पे तैनात कर दिया और चारों तरफ से घेर के ये खान ऑफ कलात को कराची ले गए और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे साइन करा के पूरा का पूरा एरिया पाकिस्तान में ले लिया। और They lied to the man. They surrounded the man, and then they forced him at gunpoint to hand over his nation to Pakistan. Wow. Wow. अब ये पूरा एरिया Wow. इसका नाम रखा गया बलूचिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान ने खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान से जबरदस्ती डॉक्यूमेंट तो साइन करा लिए थे, लेकिन इसके तुरंत बाद एक दिक्कत स्टार्ट हो गई। खान ऑफ कलात के जो भाई थे प्रिंस अब्दुल करीम, ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये पाकिस्तान ने धोखा किया। तो इनके भाई अप्रैल 1948 को 100 से 150 आदमी अपने साथ इकट्ठा करते हैं, एक बलोच नेशनल लिबरेशन कमेटी बनाते हैं और गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर देते हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास ये जो साउथ वेस्ट बलूचिस्तान वाला जो एरिया था, खरान हिल्स और नोच की जो पहाड़ियां थी, वहां जाके सब बैठ जाते हैं और पाकिस्तान फोर्सेस पे बैक टू बैक हमला करने लगते हैं कि हमारा जो स्टेट है उसको वापस करो। अब देखिए, भले ये लोग नंबर्स में कम थे, लेकिन पूरे एरिया के चप्पे चप्पे को ये लोग जानते थे, तो कितनी भी बड़ी आर्मी रहती थी उनको बहुत परेशानी होती थी इनसे डील करने में। ये एक दो लोग पहाड़ी से उतरकर हमला करते थे और फिर पहाड़ियों में ही छुप जाते थे। This sort of terrain isn't good for a huge armed force to travel through. कि 8 जुलाई 1948 को इस दिन पाकिस्तान फोर्सेस ने प्रिंस अब्दुल करीम से बातचीत स्टार्ट की और कुरान की कसम खाई कि आप लोग नीचे आओ, सरेंडर करो, हम आपको माफ कर देंगे। आपकी जो बाकी ट्राइब्स है, वो जो लोग ऊपर बैठे हैं, उनको भी आप नीचे लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, इस लड़ाई को आप बंद करो। अब ये सारे लोग ये बात सुन के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि कुरान की कसम जो है मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जैसे ये लोग नीचे उतरे तो ये मुकर गए। इन सब को पकड़ के इन्होंने क्वेटा और tricked them again. उसमें डाल दिया। Wow. 10th of December Who would have thought? Who would have thought they'd be backstabbed again? की सजा दे दी इनको। जो आम बलोच है इस इंसिडेंट को अपने लिए एक बहुत बड़ा धोखा मानता है कि कुरान की कसम ऐसे कैसे इन्होंने। Yeah, they used their own religion against them. Crazy. अब जैसे जैसे इस मुसीबत से पीछा छूटा पाकिस्तान का, तो 14th of October 1955 को दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। हुआ क्या कि उस टाइम पे पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंस थे, सिंध प्रोविंस, NWFP प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस और बलूचिस्तान प्रोविंस। तो पाकिस्तान 1 यूनिट पॉलिसी के थ्रू ये जो वेस्ट पाकिस्तान था और इसके जो 4 प्रोविंस थे, इनको मिला के एक अकेली वेस्ट पाकिस्तान की आइडेंटिटी रखना चाहता था और पाकिस्तान ने इस 1 यूनिट पॉलिसी को इंप्लीमेंट भी कर दिया। कहने का मतलब है कि ये अलग अलग प्रोविंस जिनकी अपनी अलग अलग अथॉरिटी आइडेंटिटी थी, वो सब एक सेंट्रल अथॉरिटी से अब चलेगी। और ये जो सेंट्रल अथॉरिटी थे, इसमें ज्यादातर पंजाब प्रोविंस जो था उसके लीडर थे। अब ये जो 1 यूनिट सिस्टम का आइडिया था, ये डायरेक्ट थ्रेट था बलूचिस्तान के लिए। इससे दिक्कत ये थी कि बलूचिस्तान की अपनी आइडेंटिटी, हिस्ट्री, इवन कॉन्स्टिट्यूशन तक था। Well, of course, they're completely different people. खत्म हो रही थी, यहाँ तक कि नाम तक खत्म हो रहा था। जो ये 1 यूनिट पॉलिसी लाए थे, इससे इनका नाम वेस्ट पाकिस्तान हो गया था, तो जो बलूचिस्तान नाम था वो ऑफिशियली डिसअपियर हो रहा था। अब इससे हुआ ये कि जो बलोच थे, जिन्होंने इसलिए मर्जर किया था पाकिस्तान के साथ कि वो अलग से अपना एक सिस्टम चला पाएंगे, वो एक सेकंड क्लास सिटीजन बन गए। पूरा का पूरा जो उनका अलग से पॉलिटिकल They were backstabbed, stripped of the rights. सब संभालने लगी। तो इसको लेके पूरे बलूचिस्तान में विरोध होना स्टार्ट हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि ईयर 1958 आते आते पाकिस्तान को इस पूरे एरिया में मार्शल लॉ लगाना पड़ गया। Wow. तो मार्शल लॉ लगने की वजह से जो बलूचिस्तान के जो लोग थे, उनके राइट्स भी चले गए। अब हुआ क्या कि बलूचिस्तान के जालावान रीजन में एक जहरी ट्राइब थी, उसमें एक 80 साल का आदमी नवाब नूरुज खान ये रहते थे
और ये अड़ गए, पूरी पाकिस्तान फोर्स के अगेंस्ट में खड़े हो गए। और नवाब नूरुस खान को देख के जो आसपास के जो यंग बलोच थे वो भी इनके साथ लड़ने आ गए। अच्छा, बलोचों की एक खासियत है और जो कि पूरे दुनिया में मशहूर है, इवन आज की डेट में भी अगर आप देखोगे, जब भी कोई रिवॉल्ट होता है, कुछ भी होता है, तो रिवॉल्ट करने के लिए जो लीडरशिप होती है वो खुद नहीं लड़ती, ना ही अपने बच्चों को भेजती है, ना ही अपने फैमिली मेंबर्स को भेजती है। एक्चुअल में गरीब लोग लड़ने जाते हैं, लेकिन बलोच जो हैं leaders of wow, आगे जाके लड़ते हैं, that's खुद लड़ते rare. हैं, अपने बच्चे और अपनी फैमिली को भी आगे चल के लड़वाते हैं। तो Wow. नवाब नूरुस खान जो थे, तो इन्होंने भी अपनी पूरी फैमिली के साथ ही रिवॉल्ट शुरू किया। तो ऐसे करके इनके साथ 140 लोग मिल गए थे, पाकिस्तान के खिलाफ आर्म स्ट्रगल शुरू कर दी थी इन्होंने। इन लोगों ने क्या किया था, कोए मुरद के पहाड़ थे, I mean, that shows the resolve of the people there, right? बैठ गए थे और उसी तरीके से जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर बलोच अभी तक करते आए थे, उसी की तरह नीचे आके पाकिस्तान फोर्सेस पे हमला करते थे। तो इनके साथ भी वही चीज हुई, पाकिस्तान फोर्सेस जो थी वो परेशान हो गई लड़ के। तो पाकिस्तान ने इनके साथ भी एक डील की। तो इन्होंने कहा कि आप 1 यूनिट पॉलिसी को मानते नहीं हो, इसके लिए आप लड़ो मत, हम इसको हटा देते हैं और आप सबको माफी दे देते हैं। यहां भी इन्होंने कुरान की कसम खाई। जैसे ये नीचे आए, इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया और 15 जुलाई 1960 They got backstabbed again. They lied using isn't that sacrilegious to go against like your own religion like that? नवाब नूरुस खान के बेटे और बाकियों के साथ फांसी दे दी Wow. गई। लेकिन इससे आम जनता और भड़क गई। पूरे बलूचिस्तान में छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप बन गए और उन्होंने पाकिस्तान फोर्सेस, पुलिस पोस्ट, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट सप्लाई लाइन, सब पे हमला करना स्टार्ट किया। पाकिस्तान ने भी इसके जवाब में एयर स्ट्राइक वगैरह करी और जब एक डेडलॉक जैसी सिचुएशन बन गई, क्योंकि पहाड़ में चप्पा चप्पा जानते थे, पाकिस्तान फोर्सेस के लिए इनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो थक हार के 1 जुलाई 1970 में जनरल याया खान ने 1 यूनिट पॉलिसी को खत्म किया। अब जब ये पॉलिसी हटी तो 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शन होने वाले थे। तो ये जो जनरल इलेक्शन होने थे, ये सारे के सारे प्रोविंस में होने थे, तो बलूचिस्तान के अंदर भी होने थे। तो बलूचियों ने क्या किया कि जो उनकी लोकल पार्टी थी जैसे NAP, JUI, इनको वोट देके जितवा दिया और सेम टाइम पे पाकिस्तान के हाथ से ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज का जो बांग्लादेश है वो भी निकल गया। अब जैसे ही पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश अलग हुआ तो पाकिस्तान का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो खत्म हुआ और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। तो इसके लिए बलूचिस्तान की जो लोकल पार्टियां थी NAP और JUI, जो इलेक्शन जीती थी, उसके सपोर्ट की भी जरूरत थी। थोड़े दिन पहले ही बांग्लादेश अलग हुआ था, तो अब पाकिस्तान थोड़ा नरमी दिखाता है। तो यहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो बलूचिस्तान में जीती हुई पार्टियां थी उनका सपोर्ट चाहिए था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे, वो बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टियां थी उनको अपने इन्फ्लुएंस में लिया। बलोचों के सरदार अताउल्ला मैंगल को बलूचिस्तान का CM बनाया। घोष बख्श जो थे उनको गवर्नर बनाया और बलूचिस्तान के जो बाकी हिस्सों में भी जो अलग अलग लोग जीते थे उनको उस एरिया का हेड बनाया। बलोच इससे बहुत ज्यादा खुश हुए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में पाकिस्तान को जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए था बलोचों की जीती हुई पार्टियों ने दिया। और ये सब निपटने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो PM बनते हैं पाकिस्तान के और उसके कुछ ही दिन बाद यानी कि 10 फरवरी 1973 को बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी थी NAP उसको बैन। Backstabbed again. It's decade after decade of non-stop backstabbing. कर दिया गया और फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन चालू कर दिया गया। बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे पे आर्मी आके बैठ गई थी। भुट्टो ने कहा कि ये जो NAP जो पॉलिटिकल पार्टी है बलूचियों की, ये बाहर की कंट्रियों के साथ मिलकर देशद्रोह कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी। और ये जो पूरा मिलिट्री ऑपरेशन किया गया इस पूरे एरिया के अंदर, हजारों लोगों की जान गई। बलोच जर्नलिस्ट जो थे, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, सरदार, सब पे क्रैकडाउन चालू हो गया। अब इसके बाद जगह जगह पे बलूचिस्तान के अंदर गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गया। जैसे तैसे करके कुछ टाइम के लिए जियाउल हक ने एक बेसिक डील करी। जितने भी सरदार थे उनसे बातचीत करके गवर्नमेंट में ऊंची ऊंची पोस्ट दी गई। तो काफी टाइम तक ये चीज सही रही। लेकिन ईयर 2000 आते आते फिर से बलोचों ने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी सेटअप किया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA।
ये जो बीएलए बलोचों ने बनाई थी, ये अभी तक का इनका सबसे ऑर्गेनाइज लड़ने का तरीका था। और इसी टाइम पे पाकिस्तान में क्या हो रहा था कि बलूचिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक एरिया था, तो पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके बलूचिस्तान में एक एरिया है ग्वादर, वहां पे पोर्ट बनाने की डील कर ली। इनका प्लान ये था कि एक तो ये इंटरनेशनल ट्रेड हब बनेगा, दूसरा इंडिया को भी काउंटर करने में इससे आसानी होगी। लेकिन ये सारी चीजें देख देख के बलोच जो थे वो एकदम फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि एक भी बलोचिस्तानी लीडर जो था उसको कॉन्फिडेंस में लिए बिना ये जो ग्वादर पोर्ट का जो एरिया है इसको चाइनीज के साथ मिलके इन्होंने स्टार्ट कर दिया। दूसरी चीज, ये जो डील करी इसमें जो जॉब होनी थी उसमें लोकल जो backstabbed, lied to, threatened, imprisoned, and now they create this harbor and they exclude them from work. It's like they're spitting on them. It's like Pakistan spitting on the people of Balochistan. बलोच कम्युनिटी थी उनको लेने की बजाय चाइनीज और पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के जो लोग थे उनको रखा गया। ऊपर से इस पूरे एरिया में आर्मी का परमानेंट सेटलमेंट कर दिया गया। और इससे कुछ टाइम पहले भी बलूचिस्तान के छगई डिस्ट्रिक्ट में सोना और तांबा मिला था। 412 मिलियन टन का रिजर्व मिले थे। यहाँ पे भी पाकिस्तान ने चाइनीज इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम किया था। जितना प्रॉफिट हुआ था उसमें This is where China took 50% of the profit. The Punjab area of Pakistan took 48%, and the Balochistan only got 2%. Wow. चाइना ने 50% Wow. लिया था, पाकिस्तान ने 48% लिया था। Oh और my बलूचिस्तान के God. पास सिर्फ 2% आया था। तो ये सब देख के बलोच जो थे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे और इन्होंने जो बीएलए बनाई थी उसने बैक टू बैक हमले किए। ग्वादर पोर्ट पे वहां के जो वर्कर काम कर रहे थे, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, गैस पाइपलाइन और जो चाइनीज वर्कर थे, सब पे हमला किया। फिर आगे चल के सीपैक भी शुरू किया गया। इसमें पाकिस्तान ने चाइनीज के साथ मिलकर इसमें $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। प्लान ये था कि चाइना के काशगार से बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक रोड्स, रेलवे, एनर्जी पाइपलाइन, फाइबर ऑप्टिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी गई। और इसमें कहा गया कि बलूचिस्तान जो है अब वो दुबई बन जाएगा। लेकिन यहाँ भी वही सेम प्रॉब्लम थी। यहाँ पे भी जो बलोच थे उनको इग्नोर किया गया। पहले तो कम पैसों में जो लोकल बलोच थे उनसे जमीन ली गई। लोकल लोगों को नौकरी देने की बजाय चाइनीज रखे गए। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से लोग आए। परमानेंट आर्मी रखी गई। फिशरमैन को हटा दिया गया। उनका जो रोजगार था वो भी सब चला गया। तो ये जो पूरा They're like ये सारा सिस्टम जो चल रहा था, बीएलए जो था उसने सीपैक पे इतना नुकसान किया कि आने वाले कई सालों तक बलूचिस्तान में इतने चाइनीज मारे। हाल ये हो गया था कि चाइना ने खुद आके कह दिया कि अगर हमें सीपैक पूरा करना है तो हमें Oh yeah, they're going to use China to try to push down these people that are being used and abused for centuries. The people in this area have been just abused for centuries. अपनी ही आर्मी भेजनी होगी। अब 2018 तक लड़ते लड़ते बलोच जो थे उनको एक चीज समझ में आ गई थी कि ये जो अलग अलग ग्रुप बना के हम अलग अलग अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं, इससे हमारा ही नुकसान है। हमें एक होना चाहिए, क्योंकि हम एक अलग देश की मांग कर रहे हैं तो हमें एक होना चाहिए। हमारी अलग से एक आर्मी होनी चाहिए, तभी हम पाकिस्तान को हरा के बलूचिस्तान को अलग कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, BRAS, बलोच राजी अजोई संगात, इस नाम से एक स्ट्रक्चर बनाया। बेसिकली जितने भी बलूचिस्तान के फाइटर थे, लड़ाकू ग्रुप्स थे, छोटे छोटे लोग जो अलग ग्रुप बना के पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे, इन सब को इकट्ठा करके एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हाई प्रोफाइल हमले किए, जिससे काफी डैमेज हुआ। सारा सीपैक का जो प्रोजेक्ट था, इन्होंने इस पूरे हमले में चाइनीज मार मार के होल्ड पे डाल दिया। और अभी ये जो इसी साल 2025 आते आते इन लोगों ने ये BRAS बनाने के बाद हमले की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ा दी है। इस साल इन्होंने I mean, do you guys blame the people here for rising up against Pakistan? The abuse that Pakistan has installed upon them? देश मान के एक आर्मी की तरह पाकिस्तान से लड़ रही है। इस BNA ने बहुत ही डैमेज किया है। टोटल 72 कोऑर्डिनेटेड हमले किए पाकिस्तान फोर्सेस पे, जिसकी वजह से अब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई छोटा मोटा गोरिल्ला वॉरफेयर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि दो देशों की आर्मी आमने सामने लड़ रही है। अभी थोड़े दिन पहले ही 11 मार्च 2025 को क्वेटा से पेशावर जफर एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी। 450 लोग थे। जैसे ही ट्रेन जो थी वो बोलन पास के पास पहुंचती, इन्होंने रेलवे ट्रैक पे 8 kg IED बॉम्ब लगा रखे थे और ब्लास्ट होते ही ट्रेन ट्रैक से उतर गई।
जैसे ही ट्रेन उतरी, बीएलए के फाइटर ने पूरी ट्रेन पे कब्जा कर लिया। औरतें, बच्चे और जो बलोच कम्युनिटी थी उनको छोड़ दिया, लेकिन बाकियों को बंदी बनाकर पूरी ट्रेन पे कब्जा कर लिया। अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो पाकिस्तान ने कहा कि 48 आवर्स में हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर जो हैं उनको छोड़ना चाहिए, लेकिन जब नहीं छोड़े गए तो फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया। काफी टाइम तक ऑपरेशन चला। फिर पाकिस्तान ने कहा कि इस ऑपरेशन में 64 लोगों की जान गई है। बीएलए ने कहा कि इन्होंने Wow. पाकिस्तान के 50 से ज्यादा आर्मी ऑफिसर मार दिए। अब इस हमले के Wow. बाद से हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई इस रीजन में। इस पूरे रीजन के अंदर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान ने आर्मी की प्रेजेंस बढ़ा दी है। पूरे इलाके के अंदर ड्रोन उड़ रहे हैं। और इस समय पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये आके खड़ी हो गई है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बलोचों से हथियारों से लड़ाई की जाए, ऐसे करके रोका जाए, या इनसे पॉलिटिकल डायलॉग्स किए जाएं। और इसके साथ साथ इसमें कई और इक्वेशन भी चल रही हैं। बलूचिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान से लगता है। इसमें फॉरेन प्लेयर्स भी आ चुके हैं जो बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन यूएसए का भी नाम आ रहा है इसमें कि ईरान और अफगानिस्तान को काउंटर करने के लिए बलूचिस्तान यूएस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगा अगर वो पाकिस्तान से अलग हो जाता है। अब देखिए अभी आगे क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान इस पर्टिकुलर टाइम पे बलोचों से जितना ज्यादा परेशान हुआ उतना कभी नहीं हुआ। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि आउट स्किल का 2 दिन का Okay, check out his AI master program. Whew, brother. Brother. It's just constant backstab after backstab. Lied to, imprisoned. The people are abused. The resources in the land are stolen. The jobs in the land are stolen. I mean, I can fully understand now why there would be an uprising in this area. Man. Okay, well this definitely gives a better insight on the situation that's going on. I feel like I understand quite a bit more now. So, highly recommend it. Please go check out this channel. Link to the video will be in the description down below. I'm going to read a few comments here. I'm from Baloch. Very soon we'll be independent. Thank you for supporting India. I'm from Afghanistan. We stand with our Baloch brothers. Really appreciate your voice for Balochistan. A lot of love from Balochistan. I'm from Iran. A convert to Hinduism, and I support India and Baloch. The comment section is full of Baloch people. Nitish is getting all the respect from the international. I'm feeling proud and emotional. Sir, I am Baloch from Balochistan. Thanks for raising our voice. This is the reason I love Nitish and subscribe to his channel. No bias, no hypocrisy. Straight facts, hands off to journalism. I'm from India, sad to see how Pakistan portrayed Baloch twice. Salute to Balochistan. We are with you, brother. It's like it's decades of betrayal. Decades of betrayal. And then also reneging on their oaths to their own religion. Like how that's got to be sacrilegious to them, right? To Islam, that's got to be pretty sacrilegious to renege on an oath like that. Oh my God, my man is finally speaking on our issues. God bless you. Fight with your land, Balochistan. Blessing from India. Depth and clarity over topic is praiseworthy. He's from Balochistan. A lot of people from Balochistan here. My respect for Balochistan increased day by day. I'm Balochistan. Thank you, Nitish. What does this say? Thank you for this wonderful video. The manner in which presented history of Baloch from the 15th century till today is truly admirable. It felt like we were seeing history through our own eyes. There was a lot of information in this video that we didn't know before. Yeah, I didn't know any of it, really. Some of the things I heard from my father and grandfather, all information provided you was correct and genuine. Thank you for the hard work and research. Thank you, Indian brother. The hidden truth that never Pakistan media shows. Wonderful work. All right, I want to see some of the newer comments. Let me see. Can you expose that guy named Thakur? Sir, please make a video. Next level research. India stands with Balochistan. Can I get this AI? Can I get the training video? Both Muslims and Christians invaded, eluded, and converted Indians. Proud Sikhs have defeated these invaders for generations and reduced looting, conversion of Indian Hindus. Who is supplying ammunition to Baloch? Taliban.
A Talib? Yeah, probably the Taliban. Hey, bro, please need expose Bollywood and terror. Expose Mumbai bomb blast? What? What does that mean? Pakistan even insults Quran by swearing it in a fake way for their benefit. That's what surprised me most, really. Man. Okay, well, again, link to this video will be in the description down below. If you liked my commentary, although like I was engrossed in the video, I am always engrossed when I'm ever watching a Nitish Rajput video. It's like I'm learning something new every time, right? If you liked my commentary, please like, comment, subscribe, and I'll see you next time. Okay, take care. Goodbye.